Hello, dear students. Today we shall complete part 2 of chapter 9 Bholi from Footprints Without Feet book. In part 1, we saw that Bholi, who was a neglected child at her parents' house, was sent to school as per the request of Tehsildar, and she met a very nice teacher, and that teacher spoke so confidently to her, so soft that she took a confidence in her, and the teacher assured Bholi to come in school regularly, and she assured her that from in future she will be able to speak like the normal children. So let us see how does the teacher motivate Bholi to become a active child. As you know, the theme of this chapter is that the role of teacher in student's life is very important. So let us see what did Bholi's teacher do to bring change in her life. Thus the year passed, कई साल बीत गए, the village became a small town, the little primary school became a high school, there were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill. The mail train began to stop at the railway station. Many years passed, there was a lot of improvement in the village where Bholi had been living. Primary school became high school, there was a facility of cinema also, and there was a cotton ginning mill, and mail train also started halting at the railway station. One night after dinner, Ramlal said to his wife, then shall I accept Bishambar's proposal? Actually, there was a proposal for Bholi also, because all her three sisters, Radha, Champa, Mangala, all got married. And now Bishambar was a man in the nearby village who sent a proposal to marry with Bholi. Oh, Ramlal was asking his wife, consulting with his wife, then shall I accept Bishambar's proposal? जो बिशंबर का प्रपोजल आया है भोली के लिए, क्या उसको एक्सेप्ट कर लें? यस, सर्टेनली, हिज वाइफ सेड, व्हाई नॉट? भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम. भोली तो बड़ी भाग्यशाली होगी इतने अमीर ब्राइड ग्रूम को लेकर. ए बिग शॉप, ए हाउस ऑफ हिज होन, एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक. बहुत बड़ी दुकान है, खुद का घर है, और बैंक में भी काफ़ी पैसा है. मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डोरी, और तो और वो कोई दहेज भी नहीं मांग रहा. रामलाल सेड दैट्स राइट, वो ठीक बात है, बट ही इज़ नॉट सो यंग. वो यंग नहीं है, यू नो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम. मेरी एज का है. एज ही ऑल्सो लिम्प्स, और वो लंगड़ा कर भी चलता है. मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और तो और जो इसकी पहली वाइफ से बच्चे हैं वो भी काफ़ी बड़े हो गए हैं. So what does it matter? His wife replied, 45 or 50, it is not a great age for a man. We are lucky that he is from another village and does not know about her poke marks and her lack of sense. Ramlal's wife said that, so what happened if his age is a 45 or 50? It is not a great age for a man. We are lucky that Bishambar Lal does not know about the poke marks of our daughter. He does not know about the lack of sense. बिशंबर लाल को इन दो चीज़ों का पता ही नहीं है. इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट हिज प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ. अगर अब हम उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करते तो भोली को कोई भी नहीं लेगा. यस, बट आई वंडर वट विल भोली विल से. वो तो बात ठीक है, लेकिन भोली क्या कहेगी? वट विल दैट विटलेस वन से. विटलेस मतलब जिसमें दिमाग नहीं है. उस मूर्ख ने क्या कहना है? शी इज़ लाइक ए डम काउ. वो तो ऐसी काऊ की तरह है, डम्ब काऊ है, गऊ है, वो बोलेगी नहीं. मे बी यू आर राइट, मटर्ड रामलाल. इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कोट, लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन. लेकिन इन दोनों की बातों को भोली पास वाले रूम में चारपाई पर लेटी हुई सुन रही है. बिशंबर नाथ वॉज ए वेल टू डू ग्रोसर. वो एक काफ़ी अच्छा ग्रोसर है, वेजिटेबल सेलर है, पंसारी है.
He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. बारात जब उसकी आती है, a brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession. ब्रास बैंड बज रहा है उसकी शादी में, with the bridegroom riding a decorated horse, और डेकोरेटेड हॉर्स भी है, उसके ऊपर बिशंबर लाल बैठा हुआ है. रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर. रामलाल बड़ा खुश होता है, इतनी धूमधाम से बारात आ रही है. ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच ए ग्रैंड वेडिंग. उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी बेटी की जो शादी इतनी बड़ी धूमधाम से होगी. भोलीज एल्डर सिस्टर्स who had come for the occasion were envious of her luck. भोली की जो बड़ी बहनें हैं राधा, चंपा, मंगला, वो जेलसी फील कर रहे हैं कि इसका जो हस्बैंड है वो काफ़ी अमीर है. When the auspicious moment came, auspicious मतलब शुभ, the priest said, पुजारी ने कहा, bring the bride, दुल्हन को लेकर आओ. भोली clad in red silken bridal dress, लाल रंग के सिल्क ड्रेस में कवर्ड है, was led to the bride's place near the sacred fire. जहाँ यज्ञ हो रहा है, अग्नि जल रही है, उसके पास लाया गया. Garland the bride, one of his friends, prompted बिशंबरनाथ. तो जब वहाँ पर आ गई अग्नि के पास, तो बिशंबरनाथ के किसी फ्रेंड ने कहा, गार्लैंड द ब्राइड, गार्लैंड मतलब उसके गले में, दुल्हन के गले में फूल माला, वरमाला डाल दो. The bridegroom lifted the garland of yellow marigolds. A woman slipped back the silken veil from the bride's face. veil का मतलब होता है घूंघट. एक वुमन ने ब्राइड्स के जो फेस है उसे घूंघट थोड़ा पीछे कर दिया. बिशंबर टुक ए क्विक ग्लैंस. बिशंबर ने फेस देखा. द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड्स. उसके हाथों में वो माला वहीं रुक गई. द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस. ब्राइड ने अपना घूंघट आगे कर लिया. Have you seen her? said बिशंबर to the friend next to him. She has pock marks on her face. बिशंबर ने अपने फ्रेंड से कहा, देखा उसका चेहरा देखा है, उसके चेहरे पे पोक मार्क्स हैं. So what? तो फिर क्या हुआ? You are not young either. तो फिर क्या हुआ? तुम कौन से जवान हो? Maybe, but if I am to marry her, her father must give me 5,000 rupees. वो तो बात ठीक है, लेकिन अगर मुझे इससे शादी करनी है तो इसके फादर रामलाल को मुझे 5,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे. Ramlal went and placed his turban, his honor, at Bishambar's feet. Do not humiliate me so, take 2,000 rupees. रामलाल उसके कदमों में जाता है, अपनी पगड़ी जो है टर्बन उसके बिशंबर लाल के कदमों में रख देता है और कहता है कि आप मुझे इस तरह से बेइज्जत मत कीजिए, मैं आपको 2,000 रुपये दे देता हूँ. नो 5,000 और वी गो बैक. हमें 5,000 चाहिए, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे. कीप योर डॉटर, अपनी लड़की अपने पास रखो. बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, आप थोड़ा समझदार बने. इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज. देन आउट विद 5,000. Tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe, तिजोरी खोली, and counted out the notes. He placed the bundle at the bridegroom's feet. और उसने बिशंबरनाथ के कदमों में 5,000 रुपये रख दिए. On Bishambar's face, greedy face, appeared a triumphant smile. बिशंबर के लालची चेहरे पर एक जीत की खुशी दिखी. He had gambled and won. उसने एक तरह से जुआ खेला और जीत गया. Give me the garland, he announced. अब मुझे माला दो. Once again the veil was slipped back from the bride's face. इस बार फिर से जब माला डालने लगा तो ब्राइड के चेहरे से घूंघट पीछे स्लिप हुआ. But this time her eyes were not downcast. लेकिन इस बार उसकी आंखें नीची नहीं थी. She was looking up, looking straight at her prospective husband, and in eyes there was neither anger nor hate but only cold contempt. इस बार उसकी आंखों में अपने होने वाले हस्बैंड के लिए ना तो गुस्सा था ना नफरत थी, बल्कि एक कोल्ड कंटेम्प्ट था, डिस्गस्ट थी, घृणा थी. बिशंबर रेज्ड द गार्लैंड to place it round the bride's neck, but before he could do so, Bholi's hand struck out like a streak of lightning and the garland was flung into the fire. जैसे ही वो माला डालने वाला था, भोली का हाथ एक बिजली की तरह आया
और उसकी माला को आग में गिरा दिया। शी गोट अप एंड थ्रू अवे द वेल, वो उठ खड़ी हुई और उसने घूंघट उतार कर फेंक दिया। पिताजी, said Holly in a clear, loud voice, and her father, mother, sisters, brothers, the relations, neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer. जब एकदम से बोली पिताजी, तो उसके जो माँ बाप हैं, रिश्तेदार हैं, ब्रदर सिस्टर, सब ये देखकर हैरान हो गए। स्टार्टल का मतलब सरप्राइज, कि वो बिना हकलाए बोल रही थी। पिताजी, टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट कैरिंग टू मैरी दिस मैन। आप ये पैसा उठा लीजिए, मैं इस आदमी से शादी नहीं करने वाली हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। यू कैन सी दिस। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक। थंडरस्ट्रक मतलब हैरान हो जाना। द गेस्ट बिगन टू विस्पर, जो मेहमान थे धीरे धीरे बोलने लगे, सो शेमलेस, कितनी बेशर्म है ये लड़की। सो अगली एंड सो शेमलेस, इतनी बदसूरत है, चेहरे पे पॉक मार्क्स है और बेशर्म है ये। भोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल। रामलाल चिल्लाता है, भोली तुम पागल हो गई हो। यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली, हैव यू सम रिगार्ड ऑफ आवर इज्जत, क्या तुम्हें हमारी इज्जत का ख्याल है। तो भोली कहती है, फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन। आपकी इज्जत की खातिर मैं इस लंगड़े बूढ़े आदमी से शादी करने को तैयार थी। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्पिटेबल कॉवर्ड एज माई हस्बैंड। आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट। लेकिन मैं इस जैसे घटिया, लालची, कंटेम्प्टेबल, घृणा के लायक इस कायर से मैं शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। What a shameless girl. We all thought she was a harmless dumb cow. किसी ने बोला कितनी बेशर्म लड़की, हमने सोचा ये तो हार्मलेस डम्ब काउ है। भोली turned violently on the old woman. Yes, auntie, you are right. You all thought I was a dumb driven cow. That's why you wanted to hand me over to this heartless creature. But now the dumb cow, the stammering fool, is speaking. Do you want to hear more? आपने सोचा कि मैं डम्ब काऊ हूँ और इसलिए तुम मुझे इस आदमी से शादी करवाना चाहते थे, हार्टलेस क्रिएचर से। लेकिन अब डम्ब काऊ बोल रही है, कुछ और सुनना है क्या। बिशंबरनाथ द ग्रोसर started to go back with his party. The confused man thought this was the end of the ceremony and struck up for a closing song. इतने में बिशंबरनाथ घबराया हुआ वापस जाने लगा अपनी बारात को लेकर। जो बैंडमैन थे उन्होंने सोचा कि शादी हो गई है, और वो जो है, जो एंड सेरेमनी होती शादी की, डोली की तरफ चलाते हैं गाना, वो चलाने लग गए। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, हिज हेड bowed low with the weight of grief and shame. रामलाल जैसे ज़मीन में गड़ सा गया था, उसका सिर झुका हुआ था शर्म के मारे, दुख के मारे। द फ्लेम्स ऑफ द सैक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, आग की लपटें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी थी। एवरी वन वॉज गोन। रामलाल टर्न टू भोली एंड सैड, बट वट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, वट शैल वी डू विद यू। लेकिन तुम्हारा क्या होगा भोली, अब तुमसे शादी कोई नहीं करेगा। एंड सुलेखा सेड इन ए वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टेडी। सुलेखा कौन है, भोली। भोली ने बड़ी शांत आवाज़ में कहा, डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच। इज़न्ट दैट राइट मैम। तो कहती कि आप चिंता ना करें, बुढ़ापे में मैं और आपकी मम्मा की सेवा करूंगी और उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जिस स्कूल से मैंने इतना कुछ सीखा है। इज़न्ट दैट राइट मैम। तो उसकी टीचर वो भी वहीं खड़ी हुई थी। मैम उसने उसको इस लायक बनाया कि वो बोल पाए। जिस टीचर ने उसको इतना पढ़ाया कि आज वो स्टैमरिंग नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोल सकती है, वो टीचर भी वहीं खड़ी थी। सैल्यूट है ऐसे टीचर्स को। The teacher had all along stood in a corner watching the drama. Yes, Boli, of course. तो टीचर ने कहा, हाँ बोली, of course. She replied, and in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction
that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece. तो उस टीचर की निगाह में स्माइल थी, वो अंदर से उसकी एक ऐसी सेटिस्फैक्शन थी, जो ऐसी सेटिस्फैक्शन जो एक आर्टिस्ट फील करता है जब वो अपना मास्टरपीस बना लेता है और मास्टरपीस बनने के बाद उसके बारे में सोच रहा होता है, तो जो उसके अंदर सेटिस्फैक्शन होती है, जो उसके आंखों में स्माइल होती है, ओनली दैट पर्सन नोज हु हैज़ डिज़ाइन दैट मास्टरपीस। तो इसी तरह वो टीचर आज बहुत खुश थी कि भोली सुलेखा आज जो बोल रही है उसको तैयार उसी ने किया है। अगर वो स्कूल ना आती, भोली विल रिमेन ऑलवेज भोली, भोली हमेशा भोली ही रहती, वो सुलेखा नहीं बन पाती। सो डियर स्टूडेंट्स, हेयर द स्टोरी एंड्स, यहाँ स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप यू वेल अंडरस्टूड द रोल ऑफ ए टीचर इन द लाइफ ऑफ ए स्टूडेंट। अगर एक टीचर चाहे तो एक डल स्टूडेंट को भी एक्टिव बना सकता है, इंटेलिजेंट बना सकता है। और ये चैप्टर एक तमाचा है उन दहेज के लोभियों के लिए जो सिर्फ दहेज के लिए शादी करते हैं। सो रीड दिस चैप्टर and complete its question answers. If you face any problem, you may write in the comment box. If you like the video, like it and subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.